Hello, good evening, assalamu alaikum, and welcome to the pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम. Semi-final number 2 is done and dusted, and so it is decided that on 19th November, this coming Sunday, it will be India versus Australia for the coveted title of the World Cup. We're going to talk about this and the game at hand, but for that I need to bring in my 4 very special guests into this conversation. First up, I've got a very dynamic captain of Pakistan, a great runner between the wicket, an excellent fielder, captain of Pakistan, the young and dynamic Shoaib Malik. Good evening and assalamu alaikum, Shoaib. Good evening, wa alaikum salam, assalamu alaikum everyone, and good evening. Pakistan's batting disorder was always kept in order by this one man. He was the backbone in his era, the most successful test captain of Pakistan's test history. We've got Misbah ul Haq. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, wa alaikum assalam, assalamu alaikum. Next up, 2 straight thumbs and 8 crooked fingers. हमने आज उनको कहा कि ये चांदी की लोमड़ी है, यानी कि the silver fox of the pavilion. We've got the great wicket keeper, great runner between the wickets, and the man of crisis, Moin Khan. Good evening and assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Fakhr. Assalamu alaikum everyone. Good to have you here. Thank you. ऐसा बोलेंगे तो जल्दी तो नहीं खत्म होगा. ऐसा बोलने से जल्दी नहीं, सही बात की है. और दोस्तों, फाइनली आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो इंसान जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है. जुनूब से शुमाल, मगरिब से मशरिक, बल्कि यूँ समझिए कि खित्ता अस्तवा के ये शायर हैं, अदाकार हैं, कलाकार हैं, रैपर हैं, हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, सुल्तान ऑफ स्विंग तो ऐसे ही कह देते हैं, और किंग ऑफ ऑल राउंडर्स तो एनजीएगा. असल में चिचकुचिच गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ के पानी, जनाब वसीम अकरम. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम वसीम. गुड इवनिंग फ़ख्र. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी. माशाल्लाह अपनी ज़ात में एक शाहकार. एक ओए होए क्या बात. You got it wrong, buddy. No. ज़ात में अंजुमन है. Yes. अपनी ज़ात में ही एक अंजुमन शाहकार. वैसे he was being kind and polite to you. All right, folks, the news out of Calcutta. Australia, the Kangaroos have done it again, and वसीम अकरम के ससुराल ने एक दफ़ा फिर जो है अपने लिए फाइनल में जगह बना लिया. आइए नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर. This is how the game went down. It was South Africa that won the toss and elected to bat. And Wasim Akram at the time said maybe it's a good toss to lose, and hence that's the story that it has come about. 212 all out for South Africa, but we've got to give it to Miller, the killer, with that thriller of a century. 101, outstanding work by him. And then Klaasen also there with that 47. Coetzee also participating, and Rabada also coming in with the 10 runs. But look at those bowling figures. Stark 3 for 34, fantastic work by him, and Cummins 3 for 51, and then Hazelwood 2 for 12. It was a strange day because in the morning it seemed like this is the fast bowler's paradise, and in the second innings it looked like it was all up for the spinners. Look at the bowling card for South Africa. Shamsi, Coetzee, Markram there, just fantastic bowling effort by them, but the total was just not enough, and it was Travis Head who led the charge for Australia right up front with Warner, and then Smith came to the party. English trying to bring it very close. Eventually it was Stark and Cummins that had to finish it up, though that shot by Smith, we're going to talk about that. Australia won by 3 wickets, and they have set the date up for the 19th of November to go meet India in Ahmedabad. What a game of cricket we've just witnessed. Perfect semi-final, if I'd say so myself. One of our famous captain की saying है, this is ये होता है. This is ये होता है. Yeah, and for me this definitely was a match of the tournament. Yeah. Okay, लोग में भी मेरे बात से differ करें, मेरे जो क्या उसे कहते हैं, estimate जो हमारे ये panelist हैं, मेरे colleagues जो हैं ये शायद differ करें, आप लोग differ करें, पर मेरे लिए this was game of the tournament. It was different, it was fun, it was tough. Easy for bowlers. Once in a while, it's always fun to watch. Sometimes I don't enjoy 400s and 350s. I don't. Right. Even in T20, I don't enjoy this because it's not fun. There's not, battle between bat and ball. वो balance नहीं रहता. But आज था. Yeah. ठीक है, bowlers को थोड़ा balance ज़्यादा था, और आज फिर मेरे
कोलीग्स और को-वर्कर्स ने कमेंट्री में बिल्कुल ऑपोजिट पिच रिपोर्ट दी, जो कि आम बंदे को समझ ही नहीं आएगी क्या हुआ। उन्होंने कहा विन द टॉस, इजी विकेट, गेट टू 300, विन द गेम। वही सियाने सी जिन्होंने कहा सी कुत्ता पे बैठ जाओ। Exactly. But what a game. Different cricket, like I said, uneven pitch, difficult pitch. अच्छा बैट्समैन ने स्कोर किया है, आपने मिलर की तारीफ की। I think today मिलर must have realized, बैटर की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब वो रियलाइज़ करता है कि now उसको हर चीज़ पे अबूर आ गया। Now he knows how to get runs. And I think today's inning probably will made him a proper, he was always a proper batter, but mostly इसको जाना जाता था finisher या power hitting. But today the way he batted, I think he can play test cricket easily, and he's got his confidence going. Difficult pitch. When he went out to bat, they were 3-1 down for, very few runs. They were 4 for 24, South Africa at one stage, and then Killer Miller came, and that was a lollipop, no doubt. But he grinded it out. Kyun, Misbah? बहुत ज़बरदस्त इनिंग। I mean, I haven't seen many innings like that. बिल्कुल मैच से बाहर हो ऑलमोस्ट, वहाँ से आके मैच को बनाना, और ना सिर्फ ये कि स्कोर करना बल्कि डोमिनेट करना, वहाँ से आके एक रीजनेबल टोटल तक लेके जाना टीम को ऐसी पिच पे जो मुझे लगता है कि थी भी कोई 230 वाली पिच थी। तो आफ्टर द काइंड ऑफ स्टार्ट दे हैड कि बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जा रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि यार 10 ओवरों में कुछ है ही नहीं स्कोर और विकेटें सारी आपकी गई हुई हैं वहाँ से। 18 no, they had actually South Africa at 74 in their chasing. South Africa batted first. They had 74 in 10 overs. नहीं, ये तो उसने ऑस्ट्रेलिया ने किया। साउथ अफ्रीका they were struggling, और सीम हो रहा था जिस तरह बॉल और जिस तरह विकेटें गिर गई थी वहाँ से। आई थिंक वो जो पार्टनरशिप थी क्लासन और उसकी, दैट गेव देम होप। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी किलर मिलर जिस तरह उसने पंच वापस मारा उनको वहाँ पे, और एडम जंपा जो इनफॉर्म बॉलर थे उन पे जिस तरह अटैक किया, दैट गिव देम अ चांस। बट आई थिंक इट वाजंट देयर डे ओवरऑल। अगर देखा जाए, जब सारी चीज़ें वेदर ये उनके लिए बेहतर होता, धूप निकली होती, दे वन द टॉस, वो जिस तरह वसीम भाई कह रहे थे वो भी उनके अगेंस्ट चला गया डिसीजन। फर्स्ट 10 overs द वे बॉल वाज सीमिंग अराउंड, ऐसे लग रहा था यार टेस्ट मैच शुरू हो गया। बिट अनइवन और बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत है, तो एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट देम। दे जस्ट केप्ट फाइटिंग के मैच हम किसी तरह वो लेके आए। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर थ्रू आउट अहेड ऑफ द गेम फ्रॉम दैट। Moin, so you think maybe another 20 runs for South Africa and this could have been a different game altogether? डेफिनेटली अगर बीच के ओवर्स देखें, बीच के ओवर्स ही यूटिलाइज हुए। आखिरी अभी मैं वही देख रहा था कि आखिरी जो 5 आउट हुए, आई थिंक जो छठी विकेट गिरी 174 पे गिरी, उसके बाद 41 रन्स के अंदर लास्ट 4-5 विकेटें गिर गई। आई थिंक वो जो उस इनिशिएटिव को जो इन दोनों ने दिया था साउथ अफ्रीका को, क्लासन ने और मिलर ने, वो बिल्कुल फिर एंड में दोबारा मिस कर दिया गया। अगर वहाँ पे थोड़े से 20 रन भी होते तो यकीनन एक टफ मैच तो हमने देखा हुआ ही था, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता, और ज़्यादा टिल्ट हो जाता साउथ अफ्रीका की तरफ। आई थिंक वो मिस कर गए वो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट की थी। बहुत आउटस्टैंडिंग जो पार्टनरशिप हुई है क्लासन की और मिलर की। इट वाज शोएब, सुबह इट लुक लाइक जो पहले 10 ओवर थे साउथ अफ्रीका की बैटिंग के, उस वक्त तो लग रहा था कि ये दुनिया की कोई सबसे तेज़ तरीन मुश्किल तरीन सीमिंग विकेट है। और फिर शाम को आफ्टर द सेकंड इनिंग स्टार्टेड, वो जब उन्होंने जो ही इंट्रोड्यूस कराए स्पिनर, तो स्पिन ऐसे हो रहा था विकेट के ऊपर कि जैसे ये तो बिल्कुल ही कोई टोटली स्पिनिंग विकेट है, यहाँ पे तो फास्ट बॉलर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। व्हाट वाज गोइंग ऑन विद द पिच का ये था कि उसे इनफ जो थी वो धूप नहीं लगी, उसे सन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जो मॉइस्चर था, जिसकी वजह से मिसबा भाई ने भी बात की कि बॉलर्स को सीम लेटरल मूवमेंट मिल रही थी, वो इसी वजह से मिल रही थी। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया के क्वालिटी बॉलर्स हैं, बट द रीज़न वाज के धूप ही नहीं लगी थी। और साउथ अफ्रीका देखें, उन्होंने वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए, उन्होंने वो किया। और अभी हमें इन दी एंड ये लग रहा था कि 20-30 रन जो हैं वो शॉर्ट है। रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था कि फर्स्ट 6 ओवर्स में
जो ऑस्ट्रेलिया का वो 60 रन्स वो जो थे, फेंटा लगाया उन्होंने उसने जो फेंटा लगाया था वो उसने मैच को साइड पे कर दिया था। नो डाउट एंड में जाके थोड़ा सा मैच फंसा है, लेकिन नहीं, जब लो स्कोरिंग मैच हो, ऊपर से जब मार पड़ जाती है तो you're always in the game। जब तक आप 10 विकेट्स ना दे दें आप मैच से बाहर नहीं होते, जो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का देखा है। और यही एक ऐसा रीज़न था कि उनके जैसे उन्होंने बोला 10 ओवर्स में 18 रन्स थे और इनके 6 में 60 रन थे। सो दैट वाज द डिफरेंस। जो ट्रिक थी, जो गेंद मॉइस्चर था पिच के अंदर, अगर यहाँ पे स्पिनर से स्टार्ट करते साउथ अफ्रीकन स्ट्रेट अवे, या व्हाई नॉट, लाइक सीम हार्ड होता है, बॉल टर्न करता है फंस के। प्रोएक्टिव होना चाहिए। दोनों लेफ्ट मिसबा हैंडर्स भाई थे। भी वहाँ पीछे बात कर रहे थे कि बहुत इंट्रोड्यूस बहुत लेट कराया, 100 रन के बाद, 100 रन लग गए थे उसके बाद बहुत लेट करवाया है। और उसमें ना एक और भी चीज़ है कि क्विंटन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे साउथ अफ्रीकन टीम उस पर। आप उठा के देख लें पूरे वर्ल्ड कप में जिस मैच में वो जल्दी आउट हुए हैं, ये पूरी बैटिंग लाइनअप जो नज़र आती है, इन्होंने स्ट्रगल की है। ठीक है, आज मिलर बहुत अच्छी इनिंग्स वो खेली है, लेकिन ये रोज़ इनिंग्स नहीं खेली जा सकती। ये ऐसी इनिंग्स रोज़ नहीं खेली जा सकती। तो दे वर हाईली डिपेंडिंग ऑन वन बैटर, हैविंग सो मैनी इनफॉर्म बैटर्स इन योर साइड, बट एक ही बंदे के अब अराउंड जो है वो चलते जा रहे हैं, तो वो ऐसी हिट तो लगनी थी। We go to the break to both the batters and Moeen as well. टेक्निक क्या आजकल की बदल गई है, माइंडसेट बदल गया है। टर्निंग विकेट पे मैंने देखा है, अभी एंड में जब हम देख रहे थे इंग्लिश, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग ऑन अ बैक फुट टू अ स्पिनर। ये कोई नई टेक्निक है, कोई नया माइंडसेट है? इसमें वसीम भाई ये होता है कि जब आपका रिस्ट स्पिनर मोस्टली या अगर कोई फिंगर स्पिनर है, जैसे सकलैन भाई दूसरा करते थे या सईद अजमल करता था दूसरा, तो उसमें क्या होता है जो बैटर्स हैं वो मोस्टली, क्योंकि आप हाथ नहीं पिक कर पाते, जब आप हाथ नहीं पिक कर पा रहे तो आप ये कोशिश करते हो कि मैं इसे बैक फुट पे मैनेज करूं, मैं लटकूं नहीं उस पे। और ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से, लेकिन उसमें भी जो ऑस्ट्रेलियंस थे मोस्टली वो क्या कर रहे थे, जो उनकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, जब आप हाथ नहीं पिक कर पा रहे ना किसी स्पिनर का, तो आप मिडिल स्टंप पे मत खड़े हो, आप लेग पे खड़े हो, आप लेग स्टंप पे खड़े हो, क्योंकि फिर लेग बिफोर वाला जो है ना वो बिल्कुल एलिमेंट खत्म हो जाता है। आउट हुआ है वो हर चीज, जब आप देखें एक भी बॉल मिस की, आपको ये नहीं पता अंदर आएगा या बाहर निकलेगा। अब स्टंप्स के सामने आप खड़े हैं और आपको ये भी नहीं पता बॉल ने अंदर आना है या बाहर जाना है, तो वो फिर आपको तंग करता है। और लेग स्टंप पे खड़ा होगा, अगर बॉल लगा तो मिसिंग लेग स्टंप होगी, मिसिंग लेग स्टंप है। और आप जो भी हो, समहाउ एज अ बैटर यू मैनेज, और बैक फुट पे फ्रंट फुट से ज़्यादा अच्छा मैनेज हो सकता है जब आप हाथ नहीं पढ़ पा रहे किसी बॉलर का। तो वो इसी वजह से वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक ये थी कि स्टंप्स के सामने खड़े हुए थे, मिडिल स्टंप पे खड़े हुए थे, वो फिर रन्स भी नहीं आपको मिलते। अब आपके लिए दोनों बॉल्स जो हैं वो डेंजरस हैं, अंदर आने वाला भी और बाहर जाने वाला भी, क्योंकि आपका आर्म्स नहीं खुलेंगे, आपको रूम नहीं मिलेगा। जब आर्म्स नहीं खुलेंगे तो आप तंग होंगे। All right, with that, we're going to take a break, but when we come back, there's more on the other side. Stay with us. Welcome back to the pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. मैं हूं फखर आलम. And the news is that Australia have qualified for the finals and they are going to be meeting India now in the finals. We were talking about the game. Break पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे और साउथ अफ्रीका की. हमने बात की कि स्पिनर पहले जल्दी लाया जा सकता था and then maybe could have been a different amount of pressure that would have had. Why do you think that happened? Why do you think he missed? Because Bavuma is quite a capable captain. Where did he miss that trick? I mean, did he not see कितने runs पढ़ने fast bowlers को and all? What do you think that frame of mind It's might very be? difficult to answer what must have gone through his mind at the time. But of course, you have senior players around you, people around you. They would have give you advice or suggestion. और बाहर से मैनेजमेंट का मैसेज आ जाता है, कम्युनिकेशन होती है, कई दफ़ा आप मिस कर जाते हो। बट या मिसबा ने सही बताया कि स्पिनर आया जब 70 और रन। इट कुड बी टू रीजंस। एक रीज़न ये है कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी फास्ट बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रही है, विद द न्यू बॉल, क्वालिटी बॉलर है और वो विकेटें ले रहे हैं, जैसी भी विकेट आती है उन्होंने हर जगह पे अच्छा एक ये उनके दिमाग में होगा। दूसरी चीज़ जो आपको कई दफ़ा मिस कर जाते हैं, आप पहली इनिंग को आप लेके चलते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हुई ना, तो वो सोच रहे थे कि जैसे उनका हुआ है हमारा भी हो, कोई मसला नहीं, एक आधा ओवर अगर लग भी गया है तो लेट देम बोल। लेकिन ये बड़ा एशियन कंडीशंस में जो खेलते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे कई दफ़ा वो जो हल्का सा मॉइस्चर है उसमें अच्छा खासा गेंद घूमता है, लेकिन हवा शवा लगी है 2-3 ओवरों में आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ऑफ द सीम मूवमेंट नहीं हो रही।
और ये कैश कर रहे हैं फर्स्ट 10 ओवर्स को, उनको भी पता है कि बाद में गेंद पुराना स्पिनर आएंगे, इजी नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा मैच। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये मेक श्योर किया कि भाई पहले 10 ओवर्स में नए बॉल पे जितने रन करने हैं कर दो, मेक यूज़ ऑफ दैट पावर प्ले इन फर्स्ट 10। तो वहाँ पे बहुत जल्दी मेरे ख्याल में आफ्टर 3 overs 4 overs के बाद It must be ऑफ स्पिनर था, it दो must- लेफ्ट हैंडर थे। It must be heartbreaking for South Africans, the fans, Yeah. even the players themselves or ex-players. I mean, they have reached a fifth time in the semi-final and they lost. I and was then just- twice in the T20 World Cup That as was well. their Also- best chance. That was their best chance. But इस in वर्ल्ड terms कप of में टीम भी उनकी जबरदस्त, टीम one of the Yeah. strongest Yeah. मतलब स्पिनर्स जो हैं वो भी इन फॉर्म है, But a lot बैटर्स of भी in questions, form है। okay, let's address this issue. Lot of nothing personal against anyone. जो questions हमें आते हैं, we think जो लोग समझते हैं वो भी हम आगे आपसे भी question एक दूसरे से करते हैं। लोग कह रहे हैं कि बवूमा को अगर वो 100% फिट नहीं था तो उसको शायद आज नहीं खेलना चाहिए था। What do you guys think? If he wasn't, he said it himself at the toss कि he's not 100% fit. वैसे मैं कहीं थ्रू आउट द मैच उसकी फिटनेस पे तो बात हो, पहली ओवर में आउट हो गया बेचारा। फील्डिंग भी उसने पूरी की है। हाँ जी, फील्डिंग भी But he पूरी said की it है। himself. बट उसकी फिटनेस पे तो कहीं भी मैच में ऐसा हमने कोई जी। ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा कि उसकी फिटनेस पे कोई बात आई हो। आई थिंक बट जो फॉर्म थी वो बहुत ऑर्डिनरी फॉर्म थी। हैंड्रिक्स को एक दफ़ा बीच में खिलाया था, उन्होंने रन्स किए एंड देन ही गॉट फिट अगेन एंड केम बैक इन द टीम अगेन। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक जो सेक्रीफाइस की बात की, जब आप देखते हैं एज अ कैप्टन कि कोई ऐसा प्लेयर है जो आपकी टीम के लिए अच्छा है तो यू गॉट टू सेक्रीफाइस, सिंपल इज दैट। कप्तानी और जो भी आपकी चीज़ होती है वो एक साइड में हो जाती है, टीम के जो गोल होते हैं वो पहले आते हैं। Let me ask you, because break में था मैं, I was just going through socials again and I can see again, you know, disappointed South African fans and the hashtag chokers is running again. I don't think today's game South Africa choked. They might have they played, did not. they might have played some Poor poor cricket. cricket like fielding में catches drop, but I don't think they choked. They actually fought Yeah. pretty hard today. I think South African fans should And be I think very whatever proud. happens with South Africa team, one thing we found out in this World Cup that Gerald Coetzee is a new star from South Africa. Oh yeah, you were all praises for him behind when we were watching the game. And You- Today he bowled a delivery. We were watching it. 191 से भी ज़्यादा, 157 kilometers. Yeah. 91.7 था शायद माइल्स में। Okay, but Right. 91, 92 miles, and he was consistent. He runs in. I love his passion. He's an angry young man. As a bowler, he should be. But don't become Andre Ronaldo. Yeah, not अच्छा, आज का मैच थोड़ा सा मुझे 2015 का जो सेमीफाइनल था इनका, Right. थोड़ा सा उसकी एक झलक नजर आई। झलक नजर आई कि उसमें सीधे 1-2 कैच गिर गए, इजी रन आउट मिस हो गया, फिर वो जो छक्का मारा था उन्होंने आपके दोस्त ने छक्का मार के and, जिताया था एंड पे। we're talking about Coetzee. Look at the lengths he's bowling. Yeah. The bounces, the pace, and then that was. That was kind just of- terrible by Smith. Yeah, it really that was. was just. Especially a guy with so much अंदर ही रह experience. गया था वसीम भाई। Remember when he played this shot? आधा खाना अंदर ही रह गया Yeah, था। yeah. But look at that Coetzee, that Yorker from Coetzee. quick delivery Inglis as is well. going to remember that for a very long time because that just went like a bullet. Just went. Excellent stuff there. Let's talk about before we come into the Australian batting. एक दफा फिर जरा क्लासन की बैटिंग को भी आज एक दफा फिर जरा वो करें because he did 47. He was looking okay. He settled in. He started building that partnership with Miller, and then just at that critical time, he lost his wicket. But how good was he, Misbah, today? He played very well. I think that partnership brought them back in the game. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डोमिनेशन देखें आप। उस टाइम पे आके उन्होंने ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेला और जिस तरह की बाउंड्रीज मारी हैं, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और फिर काउंटर अटैक करके एक ऐसी पोजीशन में ले आए थे जहाँ पे मेरे ख्याल में 5 ओवर और अगर ये पार्टनरशिप चलती तो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाता। अब ये देखें जिस तरीके से ये स्पिनर्स को पढ़ते हैं और आज भी एडम जैम्पा इतनी फॉर्म में है और उनको जिस तरह छक्के मारे हैं दोनों ने, आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल। लेग स्पिनर के मुझे लगता है जैम्पा के तो बिल्कुल पीछे हैं वो, आज भी 2 छक्के ऑलमोस्ट वो बड़ी इतनी को पीछे नहीं थी वो बॉल। जैम्पा की जगह कोई भी होते या कोई भी बॉलर्स होते हो और भी उनका वे ऑफ प्लेइंग ये है, यही है। उन्होंने नहीं देखना 4 आउट हुए मैंने मैच फिनिश करना, नहीं,
दैट्स नॉट हिज गोल। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ जब से उनका कमबैक हुआ है, जब से उन्होंने लीग क्रिकेट में भी रन्स बनाने शुरू किए हैं, वो एक चीज़ अपने आप को बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोली है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आई एम गोना गो प्ले माई ओन गेम। और ये इसी वजह से वो नहीं देखते कि क्या सिचुएशन है, कैसे चलना है, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपना गेम खेलते हैं। इसीलिए जो है वो ऐसी इनिंग्स आपको देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंटली मिलेगी। सिर्फ उनको वे आउट ये निकालना है कि मैंने कैसे कंसिस्टेंटली हाई वोल्टेज वाली इनिंग्स खेल के जो रिस्क लेके खेलना। गॉड ब्लेस यू। तो ये आई थिंक ये एक वजह है। और मुझे ये लगता है कि ये ऐसी इनिंग्स खेलेंगे आने वाले टाइम में कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेज इनको कर रहे हैं, उनमें ऐसी क्वालिटी है। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। 2 चौके मारे ट्रेविस हेड को एंड देन वो एक कोई सॉफ्ट डिसमिसल हुई है और फिर Jansen next ball, but I think that was the turning point. That was the turning point in the game for them. Talking about Travis Head bowling, he bowled really well. I mean, he's such an important player for them. They waited for him. They शुरू के वर्ल्ड कप में 14 के 14 प्लेयर्स के साथ आए स्क्वाड। They were hoping कि ये फिट होके आए टीम में। That's why they rate him so high. अभी उसने आज स्कोर भी किया है, 2 इंपॉर्टेंट विकेट भी ले गया। He's a gun fielder. और उसने जब सुबह वो बैटिंग करने आया था, ये देखे ना जो हम बात कर रहे हैं, ये आए और आते ही इसको ये बॉल जिस पे बोल्ड किया, वो टर्न खेला, बॉल पिच होके सीधा रह गया। एंड देन दैट अगेन 7 फुट का बंदा है, बैक फुट ते बढ़िया है। ये तो टांग निकालता तो ट्रेविस हेड के हाथ के पास पहुंच जाना। Exactly. That was just too funny, man. 7 फुट का बंदा है तो पिछली टांग ही बढ़िया है। That's just, I think that's a new meme that's going to come about. But yeah, very good cricketer. He got runs. 5वां मैच है उसका वर्ल्ड कप में, I think, और 2 मैन ऑफ द मैच उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। Today he's got man of the match again. इसी वजह से उन्होंने बड़ा जल्दी उसे फ्लाइट पे बिठाया था। जब पहले 2 मैचेस हारे थे ना, उन्होंने कहा नहीं, जस्ट कम टू इंडिया, जल्दी आ जा, जल्दी पहुंच जा। ऑस्ट्रेलिया का ये पहले भी है, इवन 2015 के वर्ल्ड कप में वहाँ पे भी ये 14 प्लेयर्स के साथ रहे थे। और बाद में जॉनसन को तो जब मैं देख रहा था शुरू का स्पेल इनका, इसने जो 1-2 चौके और फिर एक छक्का 1-2 कराया ना, उसके बाद क्या होता है कि बॉलर ऐसी पिच पे बजाय अटैक करे आगे, वो बचने चला जाता है। जब बचने जाते हो आपकी स्विंग खत्म हो जाती है। आप कहते हो किस तरह मेरा ओवर में मैं 4-5 रन दे दूं बैक, आप ये नहीं सोचते मैं इसको बाहर निकालूं, अंदर लाऊं, बाउंसर करूं। अपनी जान छुड़वाते हैं बेसिकली। उसमें वसीम भाई वो है यंगस्टर, जब ऐसी चीज हो जाए, जैसे रोहित शर्मा थे, ही वाज द वन हु वेंट आफ्टर हिम। उसके बाद ही इज बीन स्ट्रगलिंग इन द लास्ट couple of games। तो ऐसे में जो फील्ड पे बाकी लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो मैसेज जरूर देना चाहिए कि नहीं यार, डोंट चेंज योर लेंथ। वो हटाते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ में से। तो बीइंग अ यंगस्टर ये ज़रूर होगा थोड़ा सा उनके दिमाग में कि नहीं, अब मुझे मार पड़ी है तो मैं यहाँ से हट जाऊँ। वो बाकियों पे बड़ा डिपेंड करता है कि उसे बोले नहीं, स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, स्टिक टू योर लाइंस। अच्छा मोइन, लेट मी आस्क यू दिस। अभी आपने ट्रेविस हेड की बैटिंग देखी, it doesn't look like he's a very technically very sound player. It's more of a hand-eye coordination. What would you call that? आई थिंक जो नेचुरल गेम है वो अपने गेम पे ही खेलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलते हैं, जस्ट कॉन्स्टेंटली अटैक करते हैं, डजेंट मैटर। वो जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है उनका। और वही उनकी मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने देखा इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही थी, उसके बावजूद ही वो कीप ट्राइंग हार्ड, काउंटर अटैक्स कर रहे थे। आई थिंक इस पोजीशन में मुझे ऐसा लगता है कि उनके जहन में ये था कि चूँकि कम टोटल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनिशियल फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर हम रन कर जाएंगे तो बाद में इजी हो जाएगा। एडम गिलक्रिस्ट टाइप के प्लेयर हैं और टेस्ट में नीचे खेलते हैं, और बिल्कुल जैसे एडम गिलक्रिस्ट 7वें नंबर पे आगे खेलते थे। फील्ड शीट नहीं, फील्ड शीट नहीं। That's a compliment. If Adam Gilchrist is listening, I hope we can get this clip out to you, Adam. So just now, Misbah mentioned your name, that Travis Head is like you in Test cricket, and then Wasim has just said, whose name have you taken? I won't be able to sleep all night long now. That's a massive compliment from Wasim. पिछली एशेज अगर आप देखें या जहाँ पे भी ये नीचे आते हैं और मिडिल ऑर्डर में आके ऐसे ही क्विक फायर, पता नहीं चलता कि कर गए 100 बड़े 100 किए हैं इन्होंने। और ऊपर भी ऐसे ही है जो मलिक बात कर रहा है कि अच्छी लेंथ को भी लेग साइड खड़े होते हैं, बिल्कुल वार्नर ये एक दूसरे को बिल्कुल जिस तरह वो ऑफ साइड फैंसी करते हैं,
लेकिन कोई जो फॉलो करता है इनको या बीच में विकेट में आते हैं फुल लेंथ बॉल तो ही इज रेडी टू टेक हिम ऑन देयर लेग साइड पे या मिड ऑन कोऑर्डिनेशन तो मैक्सवेल की इनिंग्स के बाद बात ही नहीं करनी चाहिए। Yeah, yeah. Okay, but now that you're talking about that innings, but let's talk about what Maxwell did today. I mean, come on, this What was did he do? आपने देखा नहीं किस कमाल तरीके से भाईजान ने अपनी विकेट This is all- गिफ्ट वो कर कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं ना होवे मैक्सवेल तो छाल ना मारे। you live by the sword नहीं, ये तो होगा जब आप That's his game. that's his you game. live by the sword you die by You the die- sword that's a good one. his game. Yeah. ऐसे ही वो गेम में पिछली मैच जो उसने जिताया है एक बिल्कुल ही अनबिलीवेबल किस्म का अगर वहाँ पे वो कहता कि मैं ज़रा यूं खेल लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबिलिटी होती पूरे ओवर खेल के शायद वो 50 रन करता एज अ टीम भी वो फ्रीडम देते हैं उसे। yeah, आप देखें वो आउट होके गया है बट एवरीवन वाज सिटिंग अराउंड हिम, was दे वर normal. टॉकिंग टू हिम, इट्स नॉर्मल क्योंकि वो जब आउट होगा ऐसे, लेकिन जिस दिन वो अगेंस्ट खेलेगा पाकिस्तान तो देखे ना फिर- जिस वक्त बैटिंग करने आते पहली गेंद पे हिट मार दी उसने उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर मिला था बट हिटिंग ऑन अ वेरी फर्स्ट बॉल इस तरह का रेकलेस शॉट यू नो Yeah. उस पूरा मोमेंटम वहाँ ऑस्ट्रेलिया का चेंज जरूर हुआ था उस वक्त लेकिन दे कैपिटलाइज एट द एंड मैनेज कर गए वो। ये देखिए अरे वाह ये तो बहुत स्किपर थोड़ी सी कम ऑन भाईजान ये तुसी इस तरह की मारी होती तो वापस उसी ड्रेसिंग रूम जाते इमरान भाई थोड़ा सा कप्तान होते और मैंने ये हिट मारी होती इस सिचुएशन में होती तो मैं 3 घंटे बाथरूम में चुने से निकलना। मुझे याद आ गया वो भट्ट साहब एमयू कॉलेज वाले, जी। तो हमारा ना ओल्ड कैंपस लाहौर मैच हो रहा था अंडर 16 का, तो उन्होंने ना मुझे ऊपर बैटिंग करा दी। मैं एज ऑफ स्पिनर खेलता था तो मैच फंसा हुआ था स्पिनर ने गेंद किया, बाउंस नहीं था तो वो नीचे रह गया। मैंने कट मारी, 3 विकेटें नीचे, बैट से ही, बॉल नहीं लगा, बैट से ही 3 विकेटें नीचे। अब ना मैं आ रहा हूँ, सर नीचे गिरा था। बट साहब ने उधर से ना 2-3 आपको पता ही है वो देखे ना, अरे इधर ना आई, उधर ही सियालकोट चला जा। Did you? भट्ट साहब की एक चीज़ बिल्कुल हर किसी को पता थी बैट्समैनों को कट मारते हुए या स्वीप मारते हुए अगर अब आउट हो गए ना तो बस फिर वो बंदा जो है ना वो घूम रहा होता था कि मैं कहाँ से बाहर जाऊँ वो कहे सिर्फ सामने खेलो वी में It happened to me with Imran Bhai. 1986 श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच था सियालकोट, योर सिटी. It was a green pitch, grassy pitch. And I think I came into Pakistan number 11 बैटर, मतलब बैटिंग अब मिलती नहीं थी नेट में, खुद ही इधर उधर कर ली, कभी क्लब में जाके कर ली. तो उन्होंने कहा हिट मार के आउट नहीं होना, और भाई ने क्या किया, हिट मार के पिछों कॉर्ड बिहाइंड. अब मैं वापस गया हूँ तो ऊपर सियालकोट की ऊपर है ना ड्रेसिंग रूम, मैं वॉक करके ऊपर गया हूँ तो ऊपर घुसते ही ना ऐसे करके ऐसे बाथरूम में घुस गया हूँ. मैं क्या बूट चेंज कर रहे होंगे, बॉलिंग आ गई हमारी, भूल जाएंगे, बूट चेंज करके उसे अंदर ही आ गए बाथरूम में, बाहर निकलो. अंदर से निकलाया मुझे बाहर. तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? वसीम भाई आपने सही आपने जवाब दिया. एग्जांपल दी है ना मैक्सवेल वाली, कि मैक्सवेल वही चाल ना मारे. लेकिन अगर आप ये इमरान भाई को नहीं थे कह सकते लेकिन वसीम भाई आसान जवाब तो सच बोलते कि वो कहते एक ही शॉट मारे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ ਮੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ. I doubt Imran Bhai would have accepted that answer very gracefully. I don't think so. I don't think so at all. With that, we're going to take a break here at the pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app our continued coverage of the ICC Men's World Cup. News is that Australia are now all set to clash with India for the World Cup 2023 in Ahmedabad. Congratulations to all the Australian fans around the world celebrating their semi-final win, and to all the South African fans around the world. You should be very proud of this team. It was a fantastic team that you sent out for this campaign. Wasim, you seem busy, so Misbah, what's the way forward for South Africa? अमावस की रात का बस हम वेट करें. You got me off guard. Okay, absolutely, I know उसी that. गार में जाना पड़ेगा फिर तपस्या करने. आई थिंक कि साउथ अफ्रीका ये जो टीम है इनकी गुड फ्यूचर अहेड, स्पेशली दे आर गोइंग टू T20 वर्ल्ड कप 6 महीने में. द वे दे प्लेड इन दिस टूर्नामेंट मोस्टली इनकी यही टीम होगी. Right. और अगर वनडे में ये इतने डेंजरस हैं इस बैटिंग लाइनअप के साथ और ऑलमोस्ट यही इनके बॉलर्स होंगे, आई थिंक दे विल बी द फेवरेट्स देयर.
So And obviously they will miss the services of Quinton de Kock in ODI cricket. He has announced retirement before the World Cup. And एक और चीज़ जहाँ पे हमें बताया गया है जो मैं बता दूँ लोगों को कि द इंटरनेशनल क्रिकेट को अगले साल apparently they seriously नहीं ले रहे because they will send a B team to New Zealand for Test series in February because their first choice players will be playing in South African League जो उनकी अपनी T20 की लीग Wow. At least पता है clarity है जो भी है whatever it is. स्ट्रेटजी है, प्लान है, पूरी पॉलिसी है. Yeah. ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर. या काम गलत भी करना है तो क्लैरिटी के साथ करो भाई. एक कोई डायरेक्शन पता होना कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है नहीं जाना. अगला वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका मजे की बात ये है वसीम भाई कि उनके साथ ये चीज़ लगती है कि चोक कर जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ लगती है, उसके बावजूद इतनी क्लैरिटी है. मतलब कोई ट्रॉफी नहीं जीते लेकिन फिर भी क्लैरिटी है. Systems है ना शेबी. Every sport. Look at South African rugby. They won quarterfinal, semi-final, final by very little margins. And उनके कप्तान ने सुबह कहा है कि मुझे मैसेज आया है पूरी टीम का, South African टीम का. I feel for South Africa, their cricket team, their fans. It's a good side. It was a very good side. One of the favorites when they started. मैं क्लैरिटी की बात आ गई साउथ अफ्रीका की. मैंने पहले भी ये बात बताई है, दोबारा बताता हूँ. इमरान ताहिर और मैं खेले थे कैरेबियन प्रीमियर लीग. सो 2019 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला इंग्लैंड में जो हुआ था, सो उस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में और उस लीग में अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 महीने का गैप था. तो उसने ना नेट में बॉल लिया, नया कुकुबुरा का बॉल, और उसने ना नए बॉल से बॉलिंग करनी शुरू कर दी. तो मैंने पूछा नए बॉल से कल क्या नया बॉल करना है जो हमारा मैच था? कहता नहीं, मुझे मेरे कैप्टन ने ये बोला है, फफ ने बोला है. फफ था मेरा हाल 2019. फफ डुप्लेसिस ने ये कहा है कि इमरान हमारा इंग्लैंड से पहला मैच है, इस ग्राउंड में है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन और रॉन्ग, नॉटिंगम में मैच था. उसने कहा कि पहला ओवर करना है. जेसन रॉय ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेग स्पिनर. सो तुमने पहला ओवर करना है, नए बॉल से प्रैक्टिस करो. 6 महीने पहले की. और उसने 6 महीने बाद नया बॉल किया भी था और उसने जेसन रॉय को आउट भी किया. Wow, that's just incredible direction. With that, we're going to take a break, but when we come back, it's your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion, that's going to start up. So stay tuned. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar Alma, the Canadian Sports and Sports in the Airwise app. And the news is that Australia are all set to meet India on the 19th, this Sunday, for the finals of the World Cup. And with that, it's time for hashtag Ask the Pavilion. I've got with me Shoaib Malik, Misbah Haq Moin Khan, and the great Wasim Akram in the Pavilion. And the questions are here. Yes, Wasim, you wanted to start. I have a question from Kamran Asif. M. Kamran Asif. Assalamu alaikum. Kya haal hai aapka? Aapka question hai, to a man with 8 cricket fingers. I'm a wicketkeeper myself and I have 3 cricket fingers. Already following the great Moin man's footsteps. My question is, if it still hurts, dard hota hai कि dard hota hai? Dard hota hai. Do you face any problems in gripping stuff? रोजमर्रा के काम में? Not really. कि कभी कभार खुदा ना खास्ता आजकल अगर दोबारा कभी खेलते हैं तो बॉल लग जाती है तो it hurts. वैसे ligaments damage हैं अभी तक, वो ligaments आज तक ठीक नहीं हुए. इसका कोई हल नहीं है, like better gloves or you know? नहीं, ज़्यादा एक कोई हल. No up tubewell, no up tubewell. अक्सर मोइन भाई कोई मजाक की बात करे ना तो वो हाथ मारते हैं ना तो मोइन भाई हाथ दबा देते हैं. यकीन करो मैनू लगता है कोई फर्क नहीं पिया. उंजी ने good solid strong है. Yes, good. Also, by the way, Bada ji, तुसी भूल गए हो? Yes. आज आगा दी birthday. Yes, the great man. हैप्पी बर्थडे वकार. बहुत बहुत सालगिरह मुबारक आपको और आई होप कि आपका पूरा साल बहुत ज़बरदस्त गुजरे. All the prayers from here, from the pavilion, not from just us. Everyone. Yeah, पूरी टीम की तरफ से. अब हम सारे बोलेंगे आमीन. आप खुश रहे. Happy birthday, Waqar Yunus, and well, great. Send us the birthday cake. At least me the birthday cake. है ना, कोई नहीं मैंने भेजा दूसरी cake. All right. You can do without cake. It's you. Yeah, I need cake. I always need cake. Cake is something that is
important in life. All right, Janab, we've got questions coming in now. Abbas Babar, आपका सवाल है Abbas 99248. Question for all four panelists. Do you guys think that you achieved everything you could have in your careers? कुछ ना कर पाने का regret कभी हुआ है? Some trophy, record you wanted but you couldn't get. Much appreciated for your brilliant show, amazing work. Panel B3, thank you, Abbas Babar, truly appreciated. So, कोई ऐसी चीज, sir, let's start with you, Skip. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसी चीज जो आपने कोई रिग्रेट हो कि यार ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, या मैं ये ट्रॉफी नहीं जीत सका, या ये गेम नहीं खेल सका. एनी रिग्रेट फ्रॉम योर करियर, समथिंग दैट यू मिस्ड? क्रिकेट में तो कोई रिग्रेट नहीं है. यू नो, यू मेक मिस्टेक्स, यू फेलियर्स आते हैं, ट्रायम्स आते हैं, ट्रेजेडीज आती हैं. बट आई थिंक जो रिग्रेट is probably not the word, but I think if I would have been a little wiser when I was younger, it would have been a lot more help to me as a player, on and off the field both. Okay. Misbah? I think winning one day World Cup वो मिस करते हैं. 2015 में या 11 में चांस था, but we could not do that. एक आपका ड्रीम होता है कि आप एटलीस्ट ये, मेरे ख्याल में किसी क्रिकेटर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती. T20 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली इन 2009 वी वर पार्ट ऑफ दैट, बट स्टिल मिस वन डे वर्ल्ड कप ट्रॉफी. वो चीज़ याद आती है? आई थिंक दैट वाज गॉन आफ्टर दैट 2009. हाँ, वर्ल्ड T20. अगर ना जीतते तो फिर दैट कुड हैव बीन मैसिव. डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीत गए तो उसके बाद वो किसी हद तक खत्म हो गया. For you, Shoaib? 50 over World Cup. I was part of the team during Champions Trophy 2017. I was part of the team during 2009 World T20. 50 over वो एक रिग्रेट नहीं है, बट अगर होता वो भी वही ना कि एक ख्वाहिश सी रह जाती. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज जो अब्बास बाबर ने पूछा है कि कोई भी हमारे लेजेंड्स की कोई एक चीज उनको भूल गए हो, जो मिस करते हो कि यार मैं काश ये भी कर लेता. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड फॉर यू, मोइन? आई थिंक 99 वर्ल्ड कप फाइनल वो एक रिग्रेट है, क्योंकि इतनी फॉर्म में थी हमारी टीम और इतनी ज़बरदस्त टीम थी. उस टीम के 11 प्लेयर्स के अलावा जो बेंच स्ट्रेंथ थी, सलीम मलिक साहब, वकार यूनुस, मुश्ताक एंड यूसुफ, they were the bench strength. आप अंदाज़ा करें कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी. एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट फाइनल. बहुत ही अमेजिंग टूर्नामेंट हमने खेला था थ्रू आउट अंडर वसीम भाई कैप्टनसी. Yes, indeed, it was quite a memorable. So, I think that was the best team, but unfortunately I have a question. Yes, sir, please go ahead. From Uzair Haroon. Assalamu alaikum Uzair, क्या हाल है आपके? Pakistan is hosting Champions Trophy in 2025 and no one day schedule before November 2024. इसे कहते हैं planning. In my opinion, domestic one day tournament 4-day/5-day matches must be mandatory for a centrally contracted player if they are be to selected in Champions Trophy squad. मैं तो उज़ैर बड़ी देर से कह रहा हूँ, contracted player, if they're busy for Pakistan, then it's okay. Obviously, they can't play first class structure. But people who want to be considered, अब उनका excuse, मुझे कईयों को मैंने सुना है कि उनके excuse हैं कि वो तो लीग खेल रहे हैं. But there's a standard of procedure, जो एक system है कि first class आप खेलेंगे या white ball खेलेंगे तो आप सिलेक्शन के लिए आपको पिक करेंगे. वो पीसीबी पे उन्होंने क्या लॉ बनाना है इसके बारे में. बट आई एग्री विद यू 100%. इससे क्या होगा, ये नहीं कि प्लेयरों को तो फ़ायदा होना ही होना है, इससे आपकी फर्स्ट क्लास का सिस्टम, एक लड़कों में मोटिवेशन आएगी कि मेन प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, सीखने को मौका मिलेगा. वसीम भाई, एक चीज़ और, मैं अगर ये ठीक है आपको अगर मैचेस नहीं मिलते तो मेरा ख्याल है कि जो हमेशा ये कॉन्सेप्ट आता है कि 2 या 3 टॉप प्लेयर्स की टीमें बना के जहाँ पे भी आपको मौका मिले वन डे हम आपस में खेलते थे, मुझे याद है 40 ओवर भी खेलते थे आपस में, प्रॉपर मैचेस खेलते थे, प्रैक्टिस मैचेस. मोइन, इफ यू हम रिमेंबर, सीनियर टीम के साथ कज़ाफी स्टेडियम में बड़े सारे प्रैक्टिस मैचेस होते थे. हम जब ए टीम का हिस्सा थे तो बहुत सारे मैचेस खेले. वो आपका जो डोमेस्टिक का गैप, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का जो एक स्किल का गैप, आपको टेम्परामेंट का गैप नज़र आता है. जब आप खेलते हैं टॉप प्लेयर्स के साथ तो वो गैप कम होता है और वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा कौन सा प्लेयर मुश्किल बॉलिंग को, मुश्किल सिचुएशंस को, टेम्परामेंट अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, यू ऑलवेज गेट मोर प्लेयर्स. बेंच जो हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वो आपके सामने आती है. आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम साद पाशा. जी, गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम साद. मिसबा भाई आपसे है या हम सब से है, बट आपसे पूछ रहे हैं, व्हाई देयर इज चैटर अबाउट होस्टिंग द PSL इन UAE? If we don't host at home now,
Can we expect to host the Champions Trophy in Pakistan in 2025? We need clarity. Interesting. I think it is because of the election date Yeah, at that yeah. time. That's why they are just thinking कि अगर same time पे election हो रहा हुआ तो It'll be difficult to difficult provide कि सारी security. मशीनरी हाँ जी उस टाइम पे आपकी उधर होगी और फिर उस टाइम पे तो फर्स्ट लेग जो है वो चाह रहे हैं कि उतनी देर में वहाँ पे हो जाए फिर बाद में। इंडिया में इलेक्शंस थे तो उन्होंने आईपीएल यूएई में करवाई थी। Twice. उन्होंने भी ये करवाया, Twice. बिल्कुल ऐसे ही है, Twice. ऐसे ही है। जी मोइन, you had some question? जी क्वेश्चन है विक्रम का फखर भाई यू आर एन एक्सीलेंट एंकर वी कंसिडर यू द परफेक्ट सहूलतकार आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर क्रिकेटिंग नॉलेज however facilitating the four greats cricketing minds must be a herculean task how do you do that and what's panel's view about it तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लब लेना सीखा। मुश्किल Well, I can I'll tell you something. It is निकाल के it दिया is मैंने। ये not- सबसे आसान क्वेश्चन था क्या मेरा नाम था इनका? क्या नाम है? विक्रम Vikram, thank you very much. No, it's not an Herculean task to be in the presence of these four outstanding gentlemen. It has been an absolute privilege, and everything that I've learned in the last 3 years has helped me grow my understanding of the game of cricket because I've been in the company of such wonderful minds of cricket and things that I never knew before. And I'm constantly learning every day. There is a new learning experience for me, and I'm truly grateful and consider myself very blessed to be right here in the pavilion and talking to these guys. और between you and me, बड़ी मुश्किल से गुजरता है ये टाइम, बड़ा मुश्किल है इनको बर्दाश्त करना, खास तौर पे जो kodababa.com मेरे नाल बैठे हैं राती 12 बजे। Especially this time. पैनल का व्यू भी पूछा I love you guys, man. I love you पैनल guys. का व्यू भी पूछा बस फखर के बारे यहीं में। से बर्बादी शुरू हो गई है। तो सी बोल लो Skip, go ahead. आओ जी, please वसीम About Fakhar? Yeah. I mean, I've worked with a lot of cricketing sports / host worldwide, not just in Pakistan, abroad as well. I think he's definitely on top. नहीं अभी जो आप that's very kind बैक of रूम you. में जो बात करे थे वो करें ना गल तक मुकान दे। यार मोइन भाई आप जलसे पे पथराव किए जाएं, आप पथराव खत्म नहीं बोलो, जलसा तो खत्म होने देगा अच्छा, मुझको। चले। Sorry, skip, mind again. He makes the guests comfortable. He knows कि इसने कहाँ तक क्वेश्चन पूछना है। वो I think experience बड़ा है। He's about 55 years old. He's not a spring chicken either. So experience, his जो इसकी आदत है, nature है, easy going team man, and I think that's why everybody is working together. So well done, buddy. Thank you so much for making me. उधर पूछे ना नहीं, पूछे ना नहीं, जरा मिसबा भाई से पूछना हाँ, है जी। मिसबा go ahead. Your Mr. भाई, point of view। please, सच्ची बात। बाकी तो बहुत जबरदस्त है मेरे हिस्से की रोटी खा शो तो इनके बगैर चल नहीं सकता मुझे लगता है हम लोग इनकी उस पे ही चलते हैं Thank you, brother. मेरे लिए ये है कि मैं भी ऐसे ही हल्का फुल्का सा होस्ट करता हूँ तो मैं आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू Right, व्हाइल यू सिटिंग हियर No, you do a great job. और दूसरा ये है कि मैं जो डेप्थ में एनालिसिस करता हूँ आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू एज वेल जो आप सवाल पूछते हैं इट अलाउज मी टू यू I'm honored. Thank you. एंड यस हैविंग यू इट्स अ ग्रेट ऑनर Thank you so much, brother. I really appreciate it. Moin, you're the पूछिए। मैं वसीम भाई के साथ जाऊंगा वसीम भाई ने जिस तरह दरिया को कूजे में बंद किया है ना दरिया को कूजे में बंद किया। Just to thank set the record straight, Wasim, I'm not 55. I am 19th January 1976, which means my birthday is coming up. Just in case you guys want to, just in case you guys want to send me birthday 76? gifts. Yes. मेरे तो भी छोटे हो क्या Size? नहीं है, साइज में नहीं हूँ छोटे से छोटा उम्र में हूँ, साइज से नहीं हूँ छोटा मैं। With that, we're going to take a break, but when we come back, there's more interesting stuff in hashtag Ask the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports in the Airways app, and I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Moin Khan, and Wasim Akram with me. We're taking your questions, and I have another question here for you. This one is from DKS. DKS Twits आपका X handle है, और DKS Twits आपका सवाल है Ask the Pavilion. This show is the blockbuster show for cricket. Thank you very much. I always used to sleep after watching the show. I want to ask real Shoaib Malik, sir, that on which ground or stats have you predicted Australia is going to win World Cup 23? Which area Indian team is falling short? Interesting, because you did today आपने pre-match में, I think it was more of humorously that you said that. an honest answer is that वो जरा जल्दी से मुंह में निकल गया था, मुंह से जल्दी से I'm निकल not गया था। buying दूसरा that. बाद में माफी मांगी थी इसने। Yeah, I'm not buying that. मैं sorry. बोलना थोड़ा जिया Yes. तुसी बोल रहे हो Okay. चीज़ दसा। Oh God. हाँ जी. नहीं It's been आप 45 बताइए। days he's been Yeah. saying this
वसीम भाई, आई एम बैकिंग योर टीम। Yeah, I know. That's what I'm saying. ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो थोड़ा जल्दी से निकल गया था। स्टैट्स की बात ऐसी कोई भी नहीं है। ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जब जैसे ही प्रेशर सिचुएशन में जाती हैं चीज़ें, तो उनसे अच्छा उस प्रेशर को कोई नहीं डील करता। रही बात इंडिया की, उनके सारे ऑल बेसिस कवर्ड। मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है एज अ कैप्टन। CPL में हम लोग 11 के 11 मैच जीते, फाइनल जो है वो हार गए। सिर्फ एक ये चीज़ है, एक एलिमेंट ये हो सकता है कि बस वो बैड डे ना हो। तो इसलिए जो है यही एक ऐसी चीज़ है, कोई स्टैट्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको जो इंडियन टीम है उनको कोई ऐसी चीज़ है जिसको कवर करना है। नो, आई डोंट थिंक सो। सिर्फ एक यही है कि बैड डे ना आए, बस ये एक ऐसी चीज़ है। Well, they haven't had any bad day. They're undefeated. They're just going invincible cricket. That's what they're playing right now. So it looks different. Anything else you want to add, or should I just move on? No, Thank you. All right. शरद शार्प का सवाल है। शरद शार्प का सवाल ये है कि yesterday team India's win is being termed as the Shami final or Shami final. जो वो semi final है तो Shami 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 final. It was an outstanding display of fast bowling by Shami, Mohammad Shami. I'd like to ask Wasim Akram, what is his understanding of Shami's game and what was his role in developing him in Kolkata Knight Riders? Wasim. Before you answer that, Wasim, I also have a picture of you. ये एक जरा तस्वीर है आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं. It's a historical picture. That's Wasim Akram and Mohammad Shami. Look at that. And look at the big smile on Wasim's face taking a picture with the superstar. What that is Mohammad Shami today, of course. I think, I don't remember exact year, must be 2011, 12 maybe. A young kid who was playing first class from Bengal, because I think he's not from Bengal. He lives, I forgot his city's name. Right. He told me he comes from a political family, जो politics, local politics में involved हैं. Very eager. I remember मैंने दरमियान में जो पाकिस्तान बच्चे छोटे थे, वापस आना था मिलने, ब्रेक लेके 2-3 दिन की, तो मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ने आया था, पिक भी करने आया था. He said I wanted to spend time with you. Him, Kuldeep, Sky, all these guys were very young and very eager to learn. समी जो भी है आज की दौर में, वो उसकी अपनी मेहनत है. अगर मेरे से कुछ सीख गया है, that credit to him, कि how much he was hungry, क्या क्वेश्चन पूछता था बैटिंग में, बॉलिंग में. और फिर मैंने कहा तुमने ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, जब मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ मैं आके चेक करूँगा. सो ही वॉज, आई मीन जहाँ भी वो आज तक पहुँचा है वो एब्सोल्युटली उसकी अपनी मेहनत है, उसका अपना माइंड है, उसका अपना हार्ड वर्क है. सो वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू शमी. Amroha, UP, that's where he's from. Okay. Mohammad Shami. And I'm so glad the way you've said those things, you know, it's the credit should be given to him for learning. Exactly. And that's just, that's again very, very big of you, Wasim, to be saying that. अच्छा जनाब, सवालात का सिलसिला जारी है. I'm going to bring another question here. Here's the thing, these questions get refreshed, but this was a very interesting question. उमैर महमूद का सवाल है. उमैर महमूद, आपका एक्स हैंडल है उमैर, its_Umair96, और आप पूछ रहे हैं, माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नसीम शाह's रिटर्न टू PSL 9. शुड ही बी प्लेइंग सो सून? देखो, शोल्डर की इंजरी है, आई थिंक उसका ऑपरेशन हुआ है. एम आई राइट? यस. शोल्डर ऑपरेशन के बाद, आई हैड शोल्डर ऑपरेशन इन 97. तब आई थिंक टेक्नोलॉजी आ गई थी जो होल्स करके करते हैं. यहाँ से मेरी जो एक ओवल शेप बोन होती है वो टिल्ट होके मेरे लिगामेंट में पेन हो रहा था. उन्होंने इंजेक्शन लगा के लिक्विड निकालने की कोशिश की. वाज वेरी पेनफुल, नथिंग केम आउट. सो देन दिस डॉक्टर इन इंग्लैंड, आई थिंक रिमेंबर द हॉस्पिटल, क्लेमेंटाइन चर्चिल हॉस्पिटल, हैरो ऑन द हिल, वेरी फेमस हॉस्पिटल, शोल्डर स्पेशलिस्ट, उन्होंने किया था ये ऑपरेशन. इट टुक मी अबाउट 3 months. 3 months के बाद जब मैंने 2 महीने शुरू किया तो डर था कि अभी जाएगा, डर रहता ना जब ऑपरेशन से आओ. तो फिर थ्रो वापस आते आते मुझे 6 महीने लगे थे. 100% मुझे आई थिंक 3.5 months over 4 months. वैसे ट्रेनिंग स्टार्ट की है, वेट्स वगैरह भी. ट्रेनिंग, वेट्स, बट बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट एंड थ्रो इज टोटली डिफरेंट. एवरी मसल इज इन्वॉल्व्ड, एज यू नो. देखें, हमारे सामने ना प्राइम एग्जांपल्स हैं. वो है KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, वो पूरे फिट हो गया है. और ये हमारा ऐसा एसेट है. प्लीज
इसको पूरा टाइम जब तक वो 100% He ना himself हो, also has to Of learn. Now course. he's traveled the world. He has been playing cricket internationally from under 19 onwards from Pakistan. He should be able to make his own decisions. All right. With that, we're going to take another break. But when we come back, hashtag Ask the Pavilion continues. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports, the ARY Zap app, and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. और हम लोग बात कर रहे थे of the World Cup, taking your questions and hashtag Ask the Pavilion, and we have a lot of questions coming in. So, do you guys have any questions, or should I just go for it? Go now. I have a question. Yes, go for it. From Abbas Babar. My father is 61-year-old. Babar Sadiq. Assalamu alaikum, Sadiq Saab. He wishes to see Wasim Akram as the chairman of PCB. Can we see that happening in future? He really wants Pakistan cricket to go forward. Will we see a chairman that actually cares about our cricket? Sadiq bhai, assalamu alaikum. I think I'm enjoying my life. And with cricket, हमारे मुल्क में उसके साथ जो extra baggage आता है, unnecessary baggage, I doubt कि I'll be able to handle it. I can help Pakistan cricket in any way possible. It doesn't have to be a chairman. All right, Janab. Got another question here from Tanveer. Tanveer हमें सवाल भेज रहे हैं अमेरिका से. What is the rule for toss in international cricket? Meaning, who throws the coin and who calls, especially in the knockout stage? For example, in our leagues, the lower-ranking team is the home team who throws the coin and other team calls. So how does that work? Misbah, maybe you can tell us for the finals, World Cup finals, what the World Cup final में India is the host, so India will we just making वो क्या कहते हैं क्या उर्दू की example है राई का पहाड़ बना रहे हैं. I don't even know the example. Prashant Singh Sikarwar. Prashant 2206 आपका X handle है और उन्होंने कहा can you ask if the esteemed panelists from your show The Pavilion can arrange a pass for the finals? I'm following this show since its inception. A small favor, please. हाँ जी भाई तुम्हारे को पास मांग रहे हैं प्रशांत भाई. टिकट मांग रहे हैं. जी पास फाइनल्स का. कहाँ का? फाइनल्स का. प्रशांत मियाँ हम यहाँ कराची में बैठे हैं साइट पे. तेनू टिकट किथों दे रही है? जाके ऑनलाइन से खरीद ले भाई. ऑनलाइन. Must be sold out. India's in the finals. Yeah, it must be really sold out. All right. Next up, we've got Vinay Gaunkar. Vinay Gaunkar, आपका है Vinay Gaunkar 19. Is this the last ODI World Cup we are watching? What changes do you think ICC should make to make this format relevant? One of the suggestions from Great Waqar Yunus is to have only one ball in the play post 30 overs. Any comments? Any comments? वकार यूनुस ने एक ट्वीट किया था कि जी 30 ओवर. हाँ मैंने उनका ट्वीट देखा था. तो विनय उसी के हवाले से पूछ रहे हैं. कि एक गेंद होना चाहिए instead of दो गेंद. Am I right? उनकी ट्वीट पे वकार की. जी वकार की. And then सनात जयसूर्या ने उसको सेकंड किया था. कि एक तो कह रहा है कि एक गेंद से सर्टन ओवर के बाद चेंज कर दें, मे बी कम से कम रिवर्स स्विंग थोड़ा वापस आ जाएगा गेम में. बट आई थिंक सिंपल वे इज 50 ओवर इज टू लॉन्ग नाउ. आई मीन दिस डे एंड एज अनफॉर्चुनेटली 40 ओवर वन बॉल रिवर्स स्विंग भी रहेगा आपका. तो 20 ओवर बाद रिवर्स भी होना शुरू हो जाएगा. एंड देन ऑब्वियसली बॉलर 8-8 ओवर करेंगे. उस तरीके से सर्कल कम हो जाएंगे. आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड. आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या ख्याल है. एक चीज़ और भी कर सकते हैं वसीम भाई. हैविंग अ फिफ्थ फील्डर इन द 30-yard सर्कल फ्रॉम 11th till 40th ओवर, या उसको वापस ले जाएं कि आप 5 फील्डर्स 30-yard सर्कल के बाहर रख सकते हैं जब 10 ओवर का पावर प्ले ख़त्म होता है. ये भी कर सकते हैं. लॉट ऑफ ऑप्शंस. वही होता है कि बहुत ज़्यादा मिडिल ओवर्स 10 ओवर्स के बाद से लेके ऑलमोस्ट 40 ओवर्स तक वो बिल्कुल गेम डल उसमें चली जाती है. बाउंड्रीज उस तरह हिट नहीं होती है. ऑप्शंस क्या होती हैं? नॉर्मली ग्राइंड करते हैं बैट्समैन, सिंगल्स करते हैं. मॉडर्न डे में ऐसा नहीं होगा. जैसे बल्ले आ गए हमें क्रिकेट T20 की वजह से. मुझे नहीं लगता कि आई थिंक विद अनदर फील्डर, एक्स्ट्रा फील्डर in the circle gives bowler a chance to basically get wickets also because batsman पे boundary मारना चाहते हैं. 140 प्लस वाले मीडियम पेसर का तो गेम ही खत्म हो गया. स्पिनर को भी आप जब आपका एक फील्डर अंदर होता है, जाहिर है वो सिंगल्स आपके रुकते हैं, आपको फिर बाउंड्री का चांस लेना पड़ता है. तो एक जो थोड़ा सा एक थ्रिल आती है, थोड़ा सा देखने वालों को मिलता है कि या विकेट लेने जा रहा है एक बॉलर. बॉलर ना गला दबा दो.
बट ये अच्छा सजेशन है वसीम भाई का 40 ओवर वाला हाँ बहुत लेंथी गेम होता है 50 overs। I think so too. Imran A. Lakha, आपका सवाल है. Salams, I am from Tanzania and I have had the great opportunity to meet Misbah, Wasim and Shoaib. I have a brother on the wheelchair who has met Misbah and Shoaib too, and Wasim had sent him a T-shirt. Well, Imran, we're so happy that you got this. Wasim sir had very courteously sent me a T-shirt after had explained him Joy Bhattacharya had explained him everything, and he even called my brother, which had made everyone cry at home. Brilliant show. Well, we all know that this big giant menacing fast bowler, rapper, actor, heavyweight boxing champion is actually a big teddy bear on the inside, and a kind-hearted human being, except with me. With that, we're going to take a break. I'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. Hashtag Ask the Pavilion going on. And let's take the next one. Shoaib, you had a question? Yes, I have a question. इनका ex handle है Rashid Bashir 26. ये सवाल है वसीम भाई और मुझसे है, लेकिन I want Moin भाई to answer this, please. India doesn't have a sixth bowling option. Knowing Australia mindset, they will try to cash on that. Do you think India should be worried about this? What if one of Indian bowler gets injured during match? well, पहले तो इंजरी की बात करते हैं. इंजरी किसी वक्त भी किसी प्लेयर को हो सकती है. आई थिंक या 9 मैचेस के अंदर इवन विद द सेमीफाइनल, बिकॉज आई थिंक इन मैट मोइन के सिर्फ 5 ही बॉलर है. फॉर इंस्टेंस अगर एक को हो जाती है 2 ओवर बाद, आई थिंक हो सकता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है. कभी कभार ऐसे नॉन रेगुलर बॉलर भी आके आपको विकेट्स दे देते हैं. क्रिकेट में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो हल्की फुल्की हमने पिछले मैच में एक दफ़ा बॉलिंग देखी थी विराट कोहली या कप्तान ने फुटबॉल सूर्य कुमार वर्ल्ड कप फाइनल में अगर इंजरी हो जाए तो और क्या, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता. आपको कंकशन तो मिलेगा नहीं. Sure. तो आई थिंक अभी तक टॉप बॉलिंग की है. इन 5 पे ही बैंक करना चाहिए. कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, एंड दे शुड एक्सपेक्ट बेस्ट फ्रॉम देम. मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा चाहिए. लेकिन ये एक कंसर्न है ऑब्वियसली. ड्यूरिंग द गेम अगर वो फिट रहते हैं तो दे आर द बेस्ट बॉलर्स. Let me bring this question to you. This is not hashtag Ask the Pavilion, but I'll ask this. Who would have India preferred to see in the finals, South Africa or Australia? South Africa. If I was an Indian cricket player or team में होता और Indian supporter, तो I would have definitely gone for South Africa. South Africa. Because Australians are tough. Yeah. And they won a very, very close game. इंडिया का अभी तक सिर्फ एक क्लोज मैच हुआ है. वहीं से हुआ था. अगर इसको थोड़ा सा और डिग इन करें आपके सवाल को, तो देखें कि इंडिया जो टीम है ना, वो एक दफ़ा मैच जब उनके मुंह से निकलता है वो फिर आते हैं वापस. दूसरी दफ़ा निकलता है वो फिर आते हैं. ऑस्ट्रेलियंस भी ऐसे ही हैं. तो ये मतलब ये है कि बड़ा टाकरे का मैच जो है ना, बेस्ट टीम्स आई हैं फाइनल में. या प्लेइंग गुड क्रिकेट. और दोनों टीमें ऐसी हैं जो प्रेशर को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर को हैंडल करते हैं. तो वो फैक्टर जो बड़े मैचेस में होता है तो दोनों उसको अच्छा हैंडल करते हैं. लेट्स सी, इंडिया हैज़ द एडवांटेज. उनकी टीम इस टाइम ज़्यादा फॉर्म में भी है. मुझे लगता है ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा बेहतर टीम एंड कंडीशंस में उनकी. बट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है. वो ये है कि अगर जिस दिन उनके 2 ऊपर वाले रन्स नहीं बनाएंगे या उनमें से एक नहीं बनाएगा, तो उनका नीचे वाले जो बैटर्स है ना, वो उस तरह फॉर्म में नहीं है. तो ये जो चीज़ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं शोएब, यही बात आपने पॉइंट आउट की थी साउथ अफ्रीका की कि क्विंटन डिकॉक अगर ऊपर से नहीं बनाते स्कोर तो नीचे उनकी बैटिंग कुछ नहीं कर सकती. तो ये तो वही बात फिर इंडिया पे भी फिक्स है. अगर ऊपर से रोहित ना चले सही तरीके से, नहीं उनके पास फिर भी केएल राहुल है, विराट है उनके पास. जो ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हुआ था इंडिया से 199 पे आउट हो गए थे ना ये लोग. देखिए उनमें ना उनमें 2 लोग हैं ऐसे जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने एंड तक जाना है, लेकिन अपनी गेम के. एक विराट है, एक केएल राहुल है. उसके बीच में आप देखें जो रोहित हैं या शुभमन गिल हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं पढ़ते हैं आपको. आयर भी, यस बिल्कुल. तो श्रेयस अय्यर भी जो है वो भी आपको पढ़ते हैं. अच्छा भी शुभमन भी थोड़ा सा आई मीन करेक्ट क्रिकेट खेलता है. जैसे रोहित निकल के चांस डाउन द विकेट लेता है फास्ट बॉलर्स के ऊपर,
वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा चांस लेता है, बट उसकी बेटर टेक्निक लगती है मुझे। शुभमन वो गिल बड़ा गिल। क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहता है, लेकिन रोहित तो वो मतलब ऐसे आता Or है maybe कि one of the reason that he wants to establish himself, establish कर अपने आप जो को बात career में, मलिक कहना चाह रहा है वो ये है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो इंडिया के ऑलमोस्ट 5 इम्पैक्ट प्लेयर हैं, 5 के 5 जो मैच पे इम्पैक्ट डालते हैं। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के भी ऐसे ही हैं जो उनकी बैटिंग लाइन में छठे पे मिलर आते हैं, उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है आज। ऑस्ट्रेलिया इज़ मिसिंग दैट। ऑस्ट्रेलिया के जो 2 ऊपर ओपनर हैं दोनों, वो सही इम्पैक्ट प्लेयर हैं, या मिच मार्श ने भी कहीं किया है। मिडल में आके और नीचे आके वो इम्पैक्ट नहीं उनको मिल रहा। एक इनिंग ठीक है मैक्सवेल ने जिस तरह की खेली है, बट वो कंसिस्टेंसी जैसे इंडिया के पास है और जिस तरफ वो इम्पैक्ट डालता है मैच में, वो उस तरह नहीं इनके है। पास भी इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, जैसे स्टीव स्मिथ है, उस पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ऑस्ट्रेलियन टीम की, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है। आज बगैर मरवा देता सी उन्हें तकरीबन। वो अगर रन्स बनाएंगे ना तो इनके सारे ऑलराउंडर्स जो हैं बड़े स्ट्रांग हैं, वो किसी भी बॉलर को जो है टेक ऑन कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं। Straight away. Just a quick update, Wasim. What's the update on the Lughat? vocab, vast vocab, हाँ? इसके ऊपर क्या? अब हो गए हमारे 18 इधर 18 लफ्ज़ है, इधर पढ़ के सुना दियो जरा। 18 के 18 जरा। सुनिए Okay, जनाब, the reason वसीम we're अकरम। doing this, we have time to kill. And No, we I have have nothing- questions. I have nothing to say. I have questions to ask, but I just wanted to update this ना, because चलो नहीं, मैं homework बताता दे रहे हैं रहता ना हूँ, बच्चों तुम को, आगे homework दे आप आगे से बताते रहिएगा। प्रॉब्लम problem स्टेट अवे straight away 100% 100% यॉर्कट Yorker, वाइट बॉल wide ball, बाउंस bounce, पोजीशन position, प्रोग्राम program, इजाजत है, हेमिस्ट्रिंग hamstring, आज के लिए इतने बड़े शुक्र है शॉर्ट्स नहीं पहनी हुई। एक बार बता देना लीग का। हाँ एक है बढ़िया खेलते हैं पूरी दुनिया ही। leagues around the world. Okay. अच्छा जनाब, मनजोत सिंह आपका सवाल है, आपका एक्स हैंडल है सिंह मनजोत 007 and the question is for Wasim Akram. Wasim bhai has faced India 4 times in World Cup matches. In which World Cup year did your team come close to beating India and were not able to win it? Would love to hear that story and thoughts, Wasim. 87 में तो आई डोंट थिंक सो वी प्लेड इंडिया 4 times that you played. if I remember correctly, then 92 में हम हार गए थे आराम से 220 और हमसे चेज नहीं हुआ। 96 में क्वार्टर फाइनल हार गए थे। इंडिया played better cricket on that day. We were doing well, chasing 100 something for none in 15, chasing 289, and then we lost the plot. Okay. And 99 में we had a good team, Manchester. We were also chasing 230, 235, couldn't do it. And then 2003, the famous game at the Centurion, yeah. where the great Okay. man smashed us all over the park, Mr. Tendulkar. सचिन तेंदुलकर। जुल्फिकार अली काज़मी का सवाल आया है, मोइन खान आपसे उनका सवाल है। वो कह रहे हैं, मोइन खान, were you born in D Block satellite town Rawalpindi? My friend Adnan told me that you lived in a house that he lived there, which was close to my home. And also he's asking, what are Azam Khan's chances of getting back in Pakistan team? He's like Rohit Sharma and we need a fearless player like him. पिंडी में बिल्कुल मेरी पैदाइश हुई थी, सैटेलाइट टाउन। अच्छा, D Block? यार ये तो आपने D नहीं block? बताया हमें यार। D block, I don't Deep remember. but satellite town. Okay. Satellite town and was Holy Family Hospital. Okay. ये तो नहीं बताया तुमने हमें यार। ये कैसी दोस्ती इतने है? साल आप लोग क्रिकेट खेलते रहे, आपने ये नहीं बताया इनको? सारे रास्ते बता दिए कि इनके कहाँ पास से यहाँ टाइम ही नहीं था पहुँचना। सुनने का मेरी दास्तान ने ओए अल्लाह, सर शिकवा है कि आपके पास टाइम ही बस नहीं ठीक था। कह रहे हैं। Go ahead, yeah. and आजम का उन्होंने कहा कि would Azam be making आजम इट डिपेंड्स ऑन हिम ऑफ कोर्स। एक अपॉर्चुनिटी है, नजर आ रहा है एक वैक्यूम थोड़ा सा आने वाले टाइम के अंदर। T20 क्रिकेट के अंदर जिस फॉर्मेट में वो खेलता है, नेक्स्टली मेहनत करेगा, परफॉर्म करेगा, देन देयर इज अ चांस। सिंपल। All right, well, we wish him all the best. He's a great hitter and he's making his mark as a global brand now around the world in different leagues. और राजू रस्तोगी का सवाल है जनाब। राजू रस्तोगी, आपका एक्स हैंडल है M
मुनविक खपना आसिफ पवेलियन, क्या शो में सिर्फ तारीफों वाले सवाल लेना ही है या मैं वसीम अकरम को पीसीबी चेयरमैन बनाना हो, जिसमें वसीम अकरम को चेयरमैन बनाना हो, या जेन्युइन क्रिकेट क्वेश्चंस भी लेते हैं? बीन टैगिंग यू एवर सिंस यू स्टार्टेड द वर्ल्ड कप बट नो वन बॉदर्ड टू रीड। पढ़ दो राजू रस्तोगी, आपका ये वाला सवाल तो हमने पढ़ दिया, बाकियों का हमें पता नहीं। और बाकी ये है कि अगर आपने गौर से सुना हो तो हमने बड़ी कोशिश की वसीम अकरम को किसी तरह इस तरफ लगाएं कि ये चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं पागल ना बेवकूफ नहीं। That's really wonderfully said, actually. All right, gentlemen, with that, कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम एक और मैच जो कि कभी भी नशर नहीं होगा, क्योंकि कल हमारा ऑफ डे है, परसों भी हमारा ऑफ डे है। परसों शाम को हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और again, once again, big congratulations to all the Aussie fans around the world celebrating. Team played really well. To South African fans, you should be very proud of this team. This team is a great team, and on a given day, they can destroy any opposition. It was just not their day today. And with that, good luck to both to Australia and to India for their final on Sunday, the 19th, where we're all super excited about that. With that, gentlemen, I would say thank you, Shoaib, thank you, Moin, thank you, Misbah, and thank you, Wasim. Truly appreciate it. Thank you, Father. And it's been a long day. Chitta Tatu Kodi Tapya, Tap Chitta Tatua. Good night. Oh, it was very risky.